Hello guys, all of you are once again welcome to our class of English. Here we learn the rules which satisfy a subject with its verb. So here in this rule we use the verb according to their subject so that the sentence can be called correct. यानी कि हमने verb को adjust करना है subject के according ताकि हमारा sentence correct हो जाए. So in this contest we have done earlier 26 rules. Okay, so this one is now going to be the 27. 26 रूल में हमने क्या किया था? There we learned that with the subjects which seems what type of plural type of, ठीक है, with the subjects which seems plural type actually they are singular, so we have to use singular verb with them. So the subjects are furniture, advice, news, information, luggage, baggage, percentage, poetry, knowledge, dirt, dust, traffic, electricity, music, breakage, stationery, scenery, confectionery, poetry, bakery, crockery, behavior, armor. With these words we always use a singular verb because they are the singular uncountable noun. We always say that the news is good, news is very true. We don't say news are true, okay, because news is a singular subject. So what is the plural of news? News is no. Plural of news is not newses. But then what is to be correct? Here we will learn that with the subject we cannot use s or es to make them plural. Okay, so here is a list of the subject. We cannot make the plural of these subject by adding s or es at the end. This considered as a wrong process. So what is the right one? So the right one is there, it is in this table. Like a piece of information, we will make the plural pieces of information. Okay, a heap of rubbish, then heaps of rubbish. यानी कि don't make the noun, don't make the plural of that noun, but make the plural of its quantity, piece, heap, item. Make these plural, do not make a noun plural. Okay, so in this way we have some of the subject which has s at their end, ठीक है, which have the s at their end, but they are still singular, ठीक है, like some of the disease, measles, mumps, shingles, some of the games, billiard, bowls, darts. Okay, some of the countries like USA, the United Nations, Athens, Philippines. Some of the books like Arabian Nights, Arms and the Man's, The Rivals. Some of the subjects like physics, economics, civics, statistics. Okay, with these we always use a singular verb. Okay, so here we have discussed a lot about rule number 26. Now this is going to be our next rule, that is the rule number 27. Okay, इसको ध्यान से देखिए. with singular collective noun like jury, mob, council, committee, audience, crowd, family, assembly, army, team, class, government, herd, public, crew. We use singular verb when they agree at one point. Yes, of course you have to write these phrase also which I'm going to tell you. You have to add these words also to the definition. So once again listen the definition. With the singular collective noun like jury, mob, council, committee, audience, crowd, family, assembly, army, team, class, government, herd, public, crew, we always use a singular verb when they agree at a singular point, ठीक है. Also use pronoun it, its, itself. आपने इनके साथ इट, इट्स, इटसेल्फ लगाना है. एक्चुअल में हमें दिख रहा है कि ये पूरा कलेक्शन है, तो इस हिसाब से तो हमें क्या लगाना चाहिए, प्लूरल लगाना चाहिए. लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर कलेक्शन है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका
सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन सिंगुलर नाउन कब आएगा? जब वो एक ही डिसीजन देते हैं, ठीक है। और उसके साथ मैंने क्या लगाना है? इट्स सेल्फ लगाना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक कलेक्शन है, इसीलिए इट्स और इट्स सेल्फ आएगा। ये एक समूह में बंद है, एक ही डिसीजन पे काम कर रहे हैं, इसीलिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। देयर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबकी अलग अलग राय नहीं है, यहाँ पे सभी एक ही पॉइंट पे सहमत करते हैं, इसीलिए, ठीक है। जूरी बहुत सारी है, बहुत सारे जो जजेस होते हैं उनका समूह होता है जूरी, ठीक है। सो द जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन, ठीक है, अपने डिसीजन पे बिल्कुल वो अड़िग है। कौन? हमारी जूरी। तो इसलिए वो हो जाएगा, वर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने सिंगुलर काउंटिंग नाउन माना है, और इसके साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और क्योंकि एक ही पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं, इसलिए इट्स लगा दिया हमने, ओके। जैसे कि हम थर्ड वन में देखेंगे, द आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। यहाँ पे आर्मी भी क्या है? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ओके। हमने आर्मी के साथ हैज़ लगा दिया है। क्यों? क्योंकि पूरी ही आर्मी ने डिसीजन लिया है कि वो अपने कमांडर को डिसओबे करेंगे। जब पूरे के पूरे मिलकर के एक ही काम करते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर लगाना है, सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा, ओके। जैसे कि द क्लास हैज़ रिटन पैराग्राफ ऑन करप्शन। तो पूरी ही क्लास ने एक ही टॉपिक पे पैराग्राफ लिख दिया है। यानी कि जब एक ही बात पे सहमत होते हैं तो क्या लगाना है? हमने सिंगुलर लगाना है, और सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है, ठीक है। क्लैरिफाइड है। इसी का हम एक्सेप्शन देखेंगे, अपने रूल नंबर 27 का एक्सेप्शन देखेंगे। क्या है? कि when the above nouns divided in their opinion, then use the plural verb, also use plural pronoun like they, them, their, themselves, ठीक है। मतलब जितने भी हमने नाउन ऊपर बताए थे, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हमने ऊपर बताए थे, उनके साथ अगर वो अलग अलग अपने डिसीजन देते हैं तो प्लूरल वर्ब लगेगी और प्लूरल ही प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। जैसे कि द जूरी, पीछे तो हमने क्या किया था? द जूरी वॉज अनएनिमियस इन इट्स डिसीजन, तो एक ही डिसीजन पे कायम है। लेकिन यहाँ हम क्या दे रहे हैं? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब वो बढ़ चुके हैं, बहुत सारे बन चुके हैं, हर एक इंसान की अलग अलग राय है, इसका मतलब सब प्लूरल हो चुके हैं। तो इसलिए हमने जूरी के साथ क्या लगा दिया? वर लगा दिया, ठीक है। क्योंकि वो प्लूरल हो चुके हैं तो इट्स के बजाय क्या लगाएंगे? हम देयर लगाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है, ठीक है। तो जब वो अलग अलग डिसीजन लेते हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाइए और प्लूरल ही प्रोनाउन लगाइए, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है। इसके और एग्जाम्पल देखिए। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। द क्लास वर डिवाइडेड ऑन राइटिंग देयर पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ लिखने पे डिवाइड हो चुके हैं कि कोई किसी सब्जेक्ट पे लिखेगा, कोई किसी सब्जेक्ट पे लिखेगा। तो यहाँ पे हमारा रूल नंबर 27 हमें क्या बताता था? कि विद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन वी यूज सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे कि द जूरी वॉज अनएनिमियस इन इट्स डिसीजन। कब? व्हेन दे एग्री एट अ पॉइंट, व्हेन दे डू नॉट डिवाइड, जब वो डिवाइड नहीं होते तब का रूल है ये। लेकिन इसका एक्सेप्शन हमें क्या बताता है? कि when singular collective noun give different ideas or disagree in their opinion, then we use plural verb and plural pronoun. एग्जाम्पल दे दीजिए। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। यानी कि अलग अलग बढ़ चुके हैं वो अपनी राय में, ओके। ये देखिए सभी वही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे वही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज आर रूल नंबर 28। इन रूल नंबर 28 विद कार्डिनल एडजेक्टिव वी यूज डजन, 100, 1000 एज अ प्लूरल नाउन।
सो प्लूरल वर्ब एग्रीज विद इट। ठीक है, वो कहना चाहता है कि जब हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाते हैं 1 2 3 4 इस तरह से आ जाते हैं, तो हमने सिर्फ डजन, 100, 1000 ये प्लूरल नाउन के रूप में लगाने हैं, जिनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। ठीक है, सो विद कार्डिनल एडजेक्टिव वी यूज डजन, 100, 1000 एज अ प्लूरल नाउन, सो वी एग्री प्लूरल वर्ब विद देम। For example, 2 dozen pencils are here. So here this is the 2 dozen, not the dozens. हमने dozens नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि 2 हमें दिखाता है कि this is already in plural, so we needn't give again and again plural form. Okay, so the 2 dozen pencils are here. नेक्स्ट देखिए इसी में 500 बॉयज़, 500 नहीं लगाना, यानी कि जब भी आपकी काउंटिंग आ जाती है उसके बाद हम डजन, डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, 500 बॉयज स्टडी इन सेंट एक्जेवियर स्कूल। ओके, अब इसी का हम नोट ले लेंगे, इसी का व्हेन वी डू नॉट टेक cardinal adjective with dozen, 100, 1000, then we make them plural subjects by adding s or es. okay, कैसे, thousands, क्योंकि इनके साथ कार्डिनल एडजेक्टिव तो है ही नहीं, 1 2 3 तो है ही नहीं, तो हमने क्या लगा दिया, thousands लगा दिया। thousands of students have passed। वर्ब तो ठीक है, दोनों में ही प्लूरल आएगी, वर्ब का तो कोई जिक्र नहीं क्योंकि ये प्लूरल ऑलरेडी है, सिर्फ यहाँ पे जिक्र है कि हमने डजन रखना है कब, जबकि इसके साथ 2 3 4 5 लगेगा, लेकिन जब नंबर नहीं होंगे, जब हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं, तो क्या लगाएंगे, ओनली थाउजेंड्स लगाएंगे। ठीक है, तब हम लगाएंगे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, डजन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल हमारा 29 रूल क्या कहता है कि विथ द सब्जेक्ट्स पीपल, पुलिस, कैटल, शिप, डियर, peasantry, genetry, poultry, cavalry, we use plural noun। ठीक है, we use plural verb, okay, because they are the plural noun। हम कहते हैं इसमें कि some subjects seem singular but they are always plural, so carry the plural verb। यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट जैसे कि पीपल, पुलिस, कैटल, शिप हमें सिंगुलर लग रहे हैं, क्यों, जब हमें मीनिंग नहीं पता होता तो अक्सर हम क्या सोचते हैं कि जिसके साथ एस या ई एस होगा, दिस वन इज गोइंग टू बी द प्लूरल, बट विदाउट एस और ई एस इज गोइंग टू बी द सिंगुलर, ये हमारी थिंकिंग होती है। तो अब तो हमें इनका मीनिंग पता है कि हाँ ये बहुत सारों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब नहीं लगता, हमें नहीं पता होता मीनिंग, तो हम एस और बिना ई एस वालों को क्या समझते हैं कि वो क्या है, सिंगुलर है। तो some subjects seems singular like people, police, cattle, sheep, deer, peasantry, genetry, poultry, cavalry. So with these subjects we use plural verb because they give the sense of a plural noun। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, the police are chasing the thieves। ठीक है, कभी भी हम ये नहीं कहेंगे the police is chasing the thieves, वो गलत हो जाएगा। तो फिर जब अगर एक पुलिस वाला पकड़ रहा होता तो क्या बोलेंगे, the policeman is chasing the thief, a policeman is chasing the thieves। ठीक है, फिर उसके साथ हम मैन लगा देंगे कि एक है या दो है, इस तरह से लगा देंगे। ओके, इसी तरह से पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, पीपल्स कभी मत लगाना बिकॉज रेयर केस में होता है पीपल्स। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे एक स्पेशल ट्राइब, एक कबीले का जिक्र किया जाता है वहाँ पे। ओके, जैसे मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन बिहार, यानी कि यहाँ पे पीपल का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल रहते हैं। ठीक है, कई वहाँ पे शेड्यूल कास्ट हैं, कई ट्राइब रहते हैं, इसीलिए पीपल्स मिलके क्या बनाया है, बिहार को, बिहार में रहते हैं। ओके, इसी तरह से जब पोल्ट्री लगाते हैं हम, तो पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, पालतू, जैसे मुर्गी वगैरह, बतख वगैरह ये होती है, तो ये प्लूरल माने जाए, जैसे तो ये प्लूरल माने जाएंगे, जैसे द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर। लेकिन जब हम लगाते हैं द पोल्ट्री इज सोल्ड हियर, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, मतलब पालतू मुर्गी बतख यहाँ बेची जाएंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि जब पोल्ट्री को हम एज अ चिकन यूज़ करेंगे तो हम इज लगाएंगे। ठीक है,
तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पालतू चूज़ों के लिए है या ये चिकन के लिए यूज़ हुआ है? तो जिसके साथ दा लगा हुआ है, ओके, जिसके साथ दा लगा हुआ है वो क्या है? हमारे पेट्स हैं। और जो विदाउट आर्टिकल है इसका मतलब वो चिकन के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि पोल्ट्री का मतलब भी क्या होता है? प्लूरल ही होता है। बेशक चाहे हमें दिखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल है कि पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, ठीक है। लेकिन वो सिंगुलर कब माना जाएगा? जब उसको हम एज अ चिकन यूज़ करेंगे, जब हम विदाउट एनी आर्टिकल लिखेंगे तो, ओके। सो ये सारे ही ऐसे। इसका अब हम नोट नंबर 1 लिखेंगे। किसका? रूल नंबर 29 का नोट नंबर 1। ऊपर ऑफ कोर्स आपको समझा रखा है कि पीपल को कैसे यूज़ करना है, पुलिस को कैसे यूज़ करना है, पोल्ट्री को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझा रखा है। दिस इज नाउ गोइंग टू बी द नोट नंबर 1 ऑफ रूल नंबर 29। With scissors, trousers, pajamas, tongs, pants, spectacles, glasses, etc. We use plural verb, ठीक है। हमेशा इनके साथ plural verb लगाने हैं। जैसे his spectacles have been framed, ठीक है। My spectacles are very beautiful, okay। This there the tongs are very hard, वहाँ पे जो टोंग्स थे बड़ा हार्ड था वो। अब इसको आर में हम प्लूरल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। आप देखोगे सीजर्स के भी सेम 2 हिस्से होते हैं, ट्राउजर्स के भी सेम 2 हिस्से होते हैं। आप कभी नहीं कहोगे दिस इज माई ट्राउजर, नो, दिस इज माई ट्राउजर्स, ओके। आप अक्सर बोलते हो कि मैंने ट्राउज़र लिया है, लेकिन दिस इज़ नॉट द ट्राउज़र बट द ट्राउज़र्स होता है। अगर आप उसको सिर्फ ट्राउज़र बोलते हो तो दिस इज़ द रॉन्ग, उसको ट्राउज़र्स बोलना है, ठीक है। जैसे कि आप कभी स्पेक्टिकल नहीं बोल सकते, आप क्या बोलोगे? स्पेक्टिकल्स बोलोगे उसको, ओके। अब इसी नोट में आपको क्या बता रहे हैं? बट, उसको बट लगा के लिखना। बट व्हेन वी राइट अ पेयर ऑफ, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब, ओके। जब हम लिख देते हैं अ पेयर ऑफ विद द अबव नाउन, जो ऊपर हमें नाउन दी हुई है, इनके साथ अगर हमने अ पेयर ऑफ लिख दिया तो सिंगुलर बन जाएंगे और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसे? विद but when we use a pair of with the above noun then they become singular verb, ठीक है। सिंगुलर नाउन बन गई इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे a pair of trousers are new, ये गलत होगा फिर, क्योंकि हमने a pair एक जोड़ा की बात की है, ठीक है, तो इसलिए इज लगेगा। a pair of trousers is new। और एग्जाम्पल देखेंगे, a pair of spectacles is lying on my bed, ठीक है। a pair of scissors I have given to my mother, या फिर a pair of scissors is very sharp। आ रही समझ में मैं क्या कह रही हूँ? तो आपको जब हम a pair of लगाते हैं तो इज लगा दो, ठीक है। अदरवाइज जब हम पेयर ऑफ का यूज नहीं करेंगे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आपने लगानी है, ठीक है। सो उसके बाद ये सारा आपको समझा रखा है। रूल नंबर 30, रूल नंबर 30 हमें क्या कहता है? विद हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, SELDOM है ये, सेल्डम, नेवर, वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स, ठीक है। इन सब के साथ जो वर्ब एग्री होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी जो कि इन शब्दों के बाद यूज होता है। एग्जाम्पल में देखिए, हार्डली डज ही गो टू स्कूल। सो हार्डली के बाद हमारा सब्जेक्ट कौन सा आया है? ही आया है, ठीक है। डज इज अ हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे क्या होते हैं? ऑक्सिलरी के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन ही क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के अकॉर्डिंग ही हमने डज को लगाना है, क्योंकि ही इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने सिंगुलर ही यूज़ किया है। हार्डली डज ही गो टू स्कूल, अगर यहाँ यू होता तो हम क्या लगाते? हार्डली डू यू गो टू स्कूल, फिर हम यू के साथ क्या लगाते? डू लगाते, ठीक है। हार्डली अगर दे होता तो हार्डली डू दे गो टू स्कूल। अब आ रही है समझ में मैं क्या कह रही हूँ, है ना। सो हार्डली, नेवर, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, ये देखिए इन सब के साथ ऐसे ही लगाया गया है। नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी ऐसे ही लगाना है। नो सूनर देन में भी ऐसे लगाना है। ये पेयर होते हैं हमारे
कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, ठीक है, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन आता है। तो ये आपको याद कर लेने होते हैं, ठीक है। सो दीज आर आर 30 rules and I hope that all of you are able to understand. But still if you have some problem then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice day.